Good evening and welcome to Transcontinental Times on Smart Entrepreneurship Decoded. Tonight is our 50th episode, the Golden Jubilee episode, and we have a very special guest. In all my years of coaching leaders, politicians, and people from all walks of life, I have found politicians to be gaining my maximum respect. You may find that contrarian. You may find that I'm saying something that is not normally accepted. But if you just look at their lives and the sheer complexity of what they manage on a day to day basis, you would not be able to live even a moment of that life. But let me relate it to you with a couple of examples to show to you how difficult it is. Most of our viewers are people in the middle class, people in corporate jobs. Let's take two places. Let's take the place where you work. At work, you are promoted and given a position. You don't have to get elected. How many of you would get your job if your subordinates were asked to vote for you? How many of you would be able to do your job properly if you were asked to do a 25-year vision with a 5-year mandate and ask for re-election every time? Then let's take the place where you stay. Most of us stay in apartment blocks that have societies or in small areas that have societies. In a small society of 300 to 400 people, where people come from a similar background, have you not been amazed at the amount of politics there is just to become a treasurer, president, or something of a society? Now think country. When you think of the country and you think of the miracle called the Indian Parliament, where people come from all castes, creeds, different demographies, religions, people are young, old, men, women, isn't it a miracle that work gets done? I don't think we give enough credit to our politicians. And for that, we should hold ourselves accountable. We also decry the fact that there aren't enough people who have business acumen and education and real life skill in parliament. But again, there we are wrong. We tend to pick up the minority and whitewash the whole situation to suit our own narrative. The reality is much more complex. We have eminently competent people who, despite the extreme diversity, make things happen. And tonight, I am joined by one young, dynamic, first-time member of parliament, member of the Lok Sabha, the lower house of parliament of India, Mr. Sunil Mende. Welcome, sir. Welcome to the show. आपका स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे शो पे आने के लिए. गुड इवनिंग सर. सुनील जी, हम तो पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम तो एंटरप्रेन्योरशिप, युवाओं की बात करेंगे. आप तो खुद युवा हैं. पार्लियामेंट में तो आप मतलब यंगर लोगों में आते होंगे. लेकिन शुरुआत करते हैं. आपने तो बहुत कम उम्र में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा हासिल करके अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था, शायद 24 साल की उम्र में, और काफी सक्सेसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस सेटअप किया था. उस समय जो बिजनेस, सोशल, इकोनॉमिक माइंडसेट और वातावरण था और आज जो युवाओं को वातावरण मिल रहा है, उसमें काफी फर्क आ चुका है. कुछ एक आध चीजें बताइए जो आपको आज लगता है कि काश आपके समय में ऐसा होता तो और कितना अच्छा होता. वैसे तो बोलने के लिए काफी सारी बातें होगी. आपको 2-3 उदाहरण मेरे भी दूंगा. जब मैं पहली बार एक भंडारा करके डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जहां से मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और बेसिकली मैं हूँ विलेजर से, एक गांव से हूँ जहां मेरे पिताजी किसान थे. अभी जस्ट 3 साल पहले उनकी डेथ हुई. और वहां से जब मैं आया पहली बार, जब डिप्लोमा पूरा करके, तो मुझे तो कोई, मैं अनजान था, लोग मुझे जानते नहीं थे. तो एक अनजान और एक कॉमन पर्सन के लिए, किसान के बेटे के लिए इस बिजनेस पे आना वैसे कोई आसान बात नहीं थी. उस समय करीब करीब मेरे फैमिली में भी कोई बिजनेसमैन नहीं था, ना मेरे आगे ना कोई पीछे. तो उस समय मैंने देखा कि बैंकर्स लोग भी, मुझे याद है कि जब मैं पहली बार एक बैंकर बिजनेस लोन के लिए गया बैंक के पास, तो मुझे पहला 40,000 का लोन लेने के लिए 8 महीने लग गया. मेरा खुद का जो घर था वो घर भी गिरवी रखने के बाद भी
मुझे 8 महीना खाली 40,000 एक सिंपल लोन के लिए लगा। और जब मैं आज देखता हूँ इजीली उनको करोड़ से आसपास लोग, न्यू बिजनेसमैन को, न्यू जो पर्सन आता है, डायनेमिक पर्सन आता है, तो इजीली उनको मिल जाता है। तो एक तो बेसिक जो एक सोच में ही काफी डिफरेंस है, और गवर्नमेंट काफी एग्रेसिवली इन सब चीजों को देखती है। गवर्नमेंट की बहुत ही सारी स्कीम भी आती है, उस समय ये सब नहीं था। दूसरी बात, उस समय बिजनेस के लिए हिम्मत करना भी, जो मेरा कम्युनिटी भी बिजनेस में नहीं आता, और मैं भी बिजनेसमैन कभी था नहीं, हिस्ट्री नहीं थी। मेरे जैसे लोगों के, न्यू कमर्स के लिए काफी मुश्किल काम था ये। आपको बता दूं कि मैं जब इनिशियली जॉब किया, और उसके बाद 3 साल जॉब किया मैंने, और 21 साल में मैंने जॉब छोड़ के छोटा छोटा काम चालू किया। तो मुझे कोई काम भी देने के लिए तैयार नहीं था, और नहीं कोई इंकरेज करने के लिए पीछे था। आज तो कम से कम आपको कोई आते हैं तो जरूर हम जैसे कोई भी लोग इजीली उनको हेल्प करते हैं, या उनको गाइड करते हैं, बैंक वाले गाइड करते हैं। अब एमएसएमई के जो, जहां तक मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो एक एमएसएमई ऐसा एक बड़ा मिशन है गवर्नमेंट का, कि जो भी युवा इस बिजनेस में, छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनका पूरा पोर्टल खुला है उस बात के लिए, और सारी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे है कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आप कैसे लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप कैसे जा सकते हैं, क्या पाथ आपकी होनी चाहिए। काफी गाइड आपको मिल जाता है उस समय, बिल्कुल ये सब वातावरण नहीं। और काफी आजकल तो आप जानते हैं कि आप गूगल के जमाने में, या जो भी आपके डिजिटल वर्ल्ड में, हर इंफॉर्मेशन आपके पास में, आपके फोन पे है। ये काफी कोसों दूर थे हम लोग सोच के, हमारे सोच के दूर, तो काफी अंतर रहा है, मगर उसका मुझे कभी अफसोस नहीं होता। बोलते हैं ना कि जब स्ट्रगल करके कुछ मिलता है, हासिल मिलता है, तो उसका एक अलग आनंद होता है। तो मुश्किल है बिल्कुल ही, मुझे हमेशा इसके लिए मैं खुद खुशहाल समझता हूँ, कुछ खुशनसीब समझता हूँ कि जो भी मुझे हासिल किया, मैंने स्ट्रगल करके किया, और उसको शायद मैं अभी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाता हूँ कि क्या आपने करना चाहिए। तो जी सुनील जी, आजकल तो जब बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो पेरेंट्स ज्यादातर हाँ ही बोलते हैं। लेकिन जब आपने जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया होगा, तो उस समय आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल सही कहते हैं आप। जब मैंने जॉब छोड़ा तो कम से कम मैंने 3 महीने तो घर को बताया ही नहीं, मैंने जॉब छोड़ दिया। और मैं बेसिकली एक बहुत ही कॉमन लो प्रोफाइल फैमिली से था, नॉर्मल पैसे था। हम लोग 6 भाई थे, तो हम जस्ट पढ़ाई कर पा रहे थे, बाकी सब तो पढ़ ही रहे थे। मेरे भाई बड़े, मेरे से 2 बड़े भाई है, वो दोनों पढ़ ही रहे थे, और मुझे जॉब करना पड़ रहा था। तो इसलिए ऐसा विषय ऐसा था कि हम लोग सामने बिजनेस के लिए 1 रुपया भी घर से मुझे मिल नहीं सकता, कोई विषय नहीं था। पर मैंने जरूर ठान लिया था कि मैं ज्यादा दिन तक जॉब नहीं करूंगा, मैं जो भी होगा छोटा मोटा, कोई मैंने बड़े सपने भी देखे नहीं थे। और मैंने जब जॉब छोड़ा, 3 महीने में थोड़ा सा काम चालू किया, तो उसके बाद मेरे माँ को पता लग गया। तो माँ ने मुझे घर में आकर पहले सब बहुत डांटा मुझे कि बेटा आप क्यों जॉब करना चाहिए, जॉब ये बिजनेस करना चाहते हो, अपना काम नहीं है वो, अपने पास पैसे भी नहीं है, आप जो भी छोटा मोटा नौकरी कीजिए, आगे जब भी है, आप जब समय आया तो देखेंगे। लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि मैं अब तो जॉब नहीं करूंगा, मुझे बिजनेस ही करना है। और लगे रहा। बड़े भैया थे, वो उस समय अभी पढ़ ही रहे थे, सभी लोग मेरे घर में पढ़ रहे थे। पोजीशन तो ऐसे कुछ नहीं थी, मगर मैंने धीरे 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 वहीं से कुछ बनाया। आपको बता दूं कि मैं जब घर से निकला था जॉब करने के लिए, तो एक मेरे पास खुद की साइकिल थी, लेडी साइकिल, उस समय जमाने में तो बनती थी। और एक चावल, जिसको हम लोग, मैं चावल, मेरा जो एरिया है उसको राइस बाउल कहते हैं, गुंजिया भंडारा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैडी हमारे यहाँ होता है, चावल हमारे यहाँ से होता है। तो एक चावल की चुगड़ी और 50 रुपया पिताजी ने मुझे हाथ में देकर भेजा था। यही मेरा उस समय का सब असेट था, और यही मेरा पूरी पावर थी। बस उसके बाद कभी मुझे दोबारा घर तरफ देखने की जरूरत पड़ी नहीं, ना किसी को पैसे के लिए बोलना पड़ा। तो दो सौभाग्यवश जो संस्कार हुए थे, वैसे तो मैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार से बचपन से बला पड़ा हूँ। तो उसका एक बड़ी, एक लंबी, जिसको बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड है, बैकबोन जो के पीछे एक बड़ा वो एक स्वभाव था या संस्कार थे, कि मुझे कहीं पे भी आज तक मुझे पता नहीं कि इतना, आप बोल सकते स्ट्रगल तो है, जो कोई करता, बहुत लोग करते हैं, मैं अकेला करता हूं ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे सब हासिल हुआ, और जो हासिल हुआ उसके मैं खुश हूँ, और मुझे कोई गम नहीं, जितना भी मुझे समय लगा हो, जितना स्ट्रगल करना हो, जितना संघर्ष करना पड़ा हो। सु-
जी। तो सुनील जी, एक तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, जॉब छोड़ा, बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था तो आपने फिर ये पॉलिटिक्स का प्रोत्साहन कहाँ से आया? वो भी तो एक रिस्क रहा होगा उस समय। मैं तो बिजनेस ही करना चाहता था। मेरे एक गुरु थे जिनके पास मैं जॉब करने आया था, मिस्टर राम आफले। वो खुद एमआरएच थे, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट थे, और वेल सेटल्ड बिजनेस था उनका, और उन्हीं के पास जॉब करने आया था। उस समय जब वो पॉलिटिक्स में गए, वो भी मुझसे भी ज्यादा एक फुल फर्निश्ड बिजनेस छोड़ के वो पॉलिटिक्स में गए। तो वो भी मेरे काफी दिनों से पीछे पड़े थे कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आप जैसे लोगों ने, युवा ने आना चाहिए, अच्छे लोगों ने आना चाहिए। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं, कि मेरा तो बिल्कुल पर्पस था ही नहीं, मेरा कोई मकसद रहा नहीं पॉलिटिक्स में आने का। मैंने बोला आप जरूर वहां पॉलिटिक्स में रहिए, मैं मुझे जब भी जरूरत पड़े आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में आना बिल्कुल आना नहीं है। लेकिन जब आज से आप सोचते हो तो मुझे पॉलिटिक्स में आए हुए जस्ट 5.5 ईयर हुआ है पॉलिटिक्स में आए हुए मुझे। और ऐसा ही कुछ पॉलिटिकल ऐसी सिचुएशन बन पड़ी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा, उनको एक पॉलिटिशियन चाहिए था जो आगे बढ़ सके। तो मुझे वैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मैं शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से पला बड़ा था, तो बट नेचुरली नजदीकी मेरी जनसंघ और बीजेपी के आइडियोलॉजी से थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप, हमें अच्छा अच्छा लगेगा यदि आप हमारे बिजनेस में आना चाहते हो, पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, तो हम लोग का आपका स्वागत है। तो मैंने उनसे 2 महीने का समय लिया। मुझे बोला 2 महीना समय दीजिए, और मैं घर में फिर घर में से पूछताछ किया। तो पिताजी भी थे, भाई, बड़े भाई सब लोग थे, मैं सबसे छोटा था भाइयों में। तो मेरा एक ही भाई था जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आना चाहता था, मगर वो आ नहीं सक रहा था या सक्सेस नहीं हो पा रहा था। उसने खाली मुझे इंकरेज किया। बाकी घर में सबने बोला कि तू अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो अकेला है हमारे घर में जो बिजनेस करता है, थोड़ा सा अच्छा खासा तूने अभी कुछ अच्छी भलाई ठीक ठीक कर रखा है बिजनेस में, तो भी तू की बिजनेस जाना चाहता। तो सबने मना किया था, मगर उसकी इच्छा थी। और बाकी सब फ्रेंड्स लोगों का कहना था कि ठीक है सुनील, अब तो तूने बिजनेस कर लिया, काफी कुछ अच्छा, एक मुकाम भी पा लिया है अच्छा बिजनेस में, तो अभी तुझे तेरे से लोगों ने इसमें जाना चाहिए। तो उनको अच्छे बिजनेस, अच्छे पॉलिटिशियन की भी जरूरत है। तो पार्टी ने तब मुझे शुरू में एक छोटा सा पद दिया, और कहा कि आप लोग जो नगराध्यक्ष, जिसको मेयर बोलते हैं आप लोग, मेयर के लिए पब्लिकली उसका इलेक्शन होना था। उसके लिए उन्होंने बोला कि आप पब्लिक के लिए आपको इसके लिए कॉन्टेस्ट करना है। और मैं, मेरे लिए सब कुछ नया था। मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल आता नहीं था। मैं डायरेक्ट कभी टच में आया नहीं था पॉलिटिक्स के। खाली सोशल फील्ड में काफी दिनों से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे काफी सोशली अटैच था सभी लोग। पॉलिटिक्स, आपको बोल दूं कि पॉलिटिक्स काफी अलग हटके है सब चीजों से। सोशल एक्टिविटीज बहुत अलग है, और पॉलिटिक्स बहुत अलग है। पॉलिटिक्स में आपको हर चीज अलग, उसके दाव पेच सब अलग होते हैं, और एक कॉमन सोशल सोशलिस्ट का काम अलग होते हैं। तो फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब पहली बार मैं कोई इलेक्शन लड़ा, तो एक अच्छे मार्जिन वोटों से, यानी जिसको हिस्टोरिकल मार्जिन वोटों से मैं चुन के दिया लोगों ने मुझे। जो मेरा बैकग्राउंड रहा था, जो लोगों की सेवा की थी दूसरे दूसरे कामों से या सोशल फील्ड से, तो एक अच्छा एक इमेज उनके सामने गई। मुझे नहीं मालूम था कि ये इमेज पॉलिटिक्स में काम आती है, मगर मैंने वो भी देखा कि अच्छे इंसानियत की इमेज आपको हमेशा पॉलिटिक्स में भी उसका सहारा जरूर मुझे मिला। और जो भी मेरे काम रहे, जो मैंने काम किया पीछे, उससे बैक हिस्ट्री में, वो सब मुझे काम में आया, और अच्छे वोटों से मैं चुन के आया। और उसी की बात थी कि एक अच्छा, मेरी पार्टी ने मुझे अच्छा देखा, तो इमीडिएट 2 साल बाद मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुना गया। मैंने खड़ा किया गया फिर पॉलिटिक्स लड़ने के लिए। उसके लिए मैं तैयार नहीं था। मुझे 8 दिन पहले बोला गया कि आपको उसमें तैयारी करनी है, और आपका नाम चल रहा है, हम सोच रहे हैं, फाइनल तो किया नहीं अभी, मगर आपको उसकी तैयारी में रहना है। तो विद इन 8 डेज मुझे टिकट डिक्लेयर हुए, सबसे लास्ट में डिक्लेयर हुई थी। और मुझे उसके लिए भी, अब वो मेयरशिप और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें भी काफी डिफरेंस है। एक मेयर का इलेक्शन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि यहाँ अराउंड 21 लाख लोग वोट करते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और जहां से मैं मेयर था उसके लिए मैक्सिमम 80,000 लोग वोट करते हैं। तो काफी गैप थी। मेरा एरिया एक छोटा सा सिटी था, तो मुझे 2 डिस्ट्रिक्ट का और 1750 गांव का प्रतिनिधित्व करना था। मेरी वहाँ बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं थी, लेकिन वहां फिर से मेरे 2 साल के काम और मेरी बैक हिस्ट्री वहाँ काम में आई, अच्छा थी। एक उसको क्लीन इमेज बोल सकते हैं आप, एक इमेज का, एक लड़का कुछ करना चाहता है तो उसे चांस देना चाहिए। और वहां भी मैं फॉर्चुनेटली सभी सभी के आशीर्वाद से बोलिए, एक सभी के विशेष से
एक 2 लाख के करीब जो एक उबिक हिस्ट्री थी मेरे एरिया में, मैं 2 लाख के वोटों से चुन के आया, काफी मार्जिन से, जो भी उबिक हिस्ट्री थी इस एरिया। तो इस तरह से जी मेरा एंट्री हुआ। शुरू में तो मुझे वहां भी थोड़ा मुश्किल गया, क्योंकि मेरे लिए सब नया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो काम अपने को लोगों ने सौंपा गया है, जिस काम को आपने स्वीकारा है, उसकी मेरी आदत रही है कि जिस काम को आप स्वीकारते हैं उसको मन लगा के, पूरा आपका तन मन धन लगा के उसको काम करना चाहिए। और वो लोगों का यदि आपने देखा है कि आप लोक सेवा करना है, आपको सच में आपको सेवा करनी है, जैसे कि हमारे मोदी जी की और हमारी पार्टी के आंदोलन जी कि हम खुद को, अरे मोदी जी खुद को प्रधान सेवक मानते हैं, हम छोटे से सेवक उसके हैं। उस लेवल को लेके अपन लोग काम करने की एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की तरह से अभी भी मैं वैसे ही पॉलिटिक्स करता सुनील जी, एक प्रोग्राम जो सरकार का काफी सक्सेसफुल रहा है और देश विदेश में उसकी काफी चर्चा होती है, मैं विदेश में रहता हूँ, यहाँ के लोग हूँ। जी पूछते हैं कि कैसे हो गया भारत में, हम भी उसको यहाँ लाएं। वो है स्टार्टअप इंडिया। युवाओं में जी एक नया हौसला, एक नया जुनून है कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जी एक नारायण मूर्ति या रतन टाटा जैसे मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो जी हम तो ये शहरों में देखते हैं, क्या आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इसकी लहर है? वहां कि क्या छोटे शहरों में भी ये पहुंच रहा है? जी, बिल्कुल है। ऐसा है, देखिए, माहौल आपने भी देखा होगा पिछले 8 साल में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर जब से आई है गवर्नमेंट, तो उन्होंने पहले तो माहौल पैदा किया कि ये देश मेरा है, यहाँ की हर चीज मेरी है, और जब जब मेरे देश को कोई जरूरत पड़ती है उसके लिए युवाओं ने आगे आना चाहिए। इनिशियली जिसको बोलते हैं कि बेस बनाना, तो पहले 5 साल में शायद मोदी जी उसको बेस बनाया होगा, तब भी उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, तब भी उनकी आइडियोलॉजी थी और उनकी सोच भी थी। मगर पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से एमएसएमई को उन्होंने उभार दिया, और सभी छोटे मोटे काम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जैसा उन्होंने स्कीम निकाली, और जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना काल में जब हमने देखा कि हमारे देश में एक मास्क भी बनता नहीं था N90, और कुछ भी नहीं, हम लोग को उस समय ध्यान में आया कि जब वो पूरा वर्ल्ड जब लॉकडाउन हुआ और बाहरी देशों से सब चीज आना बंद हुआ, तो खासकर मोदी जी ने उस समय पूरा अपना फोकस इस विषय पे दिया गया कि देखो, मैं अभी युवाओं को अपील किया बहुत अच्छे तरीके से कि देखो, हम लोग बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, हमें इस पे स्टार्टअप इंडिया पे जाना पड़ेगा, बड़े पैमाने में इसको खुद को अपने को ढालना पड़ेगा, उनको अपनी प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, और अपने ही स्वदेश में ही निर्मित जो भी चीज होगा उनको भी उन्हीं वस्तुओं से बना हुआ, उन्हीं के मार्फत बना हुआ वही हम लोग कर सकते हैं, और हमें वो ताकत है, हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि आज हम भी ये सब चीजों में आ सकते हैं, और हम लोग भी अच्छा स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से कर सकते। तो लोगों को अच्छा अपील हुआ कि जब कोरोना काल में जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को संवारा, सहारा दिया, तो सब उनके इस चीज के कायल हो गए कि सच में जब जो जानते हो सोचते हैं, पूरे देश में काफी अभी भी पूरे देश में और जग में जो भी वर्ल्ड में जो भी काम चल रहा है, काफी देश की हालत अभी भी खराब है ड्यू टू लॉकडाउन या ड्यू टू कोरोना। तो उस हिसाब से उन्होंने देश को, इतने बड़े 130 करोड़ के देश को बहुत सही ढंग से संभाला, तो उसमें एक युवाओं में एक अलग जोश है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, सोच की थोड़ी कमी थी, वो भी मोदी जी ने एक अलग एक माहौल बना के उस चीज को भी पूरा कर लिया, और एक पूरे देश को ध्यान में आ गया। आज हम लोग खाली N90 मास्क बनाते ही नहीं, तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम वैक्सीन भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो आज तक कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं था। ऐसे कई चीजें हम लोग अभी तो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, जो कभी हमारे देश में पैदा होती नहीं, तो उसको पैदा करना चालू कर दिए। और जहां तक हमारा फॉरेन एक्सचेंज की बात है, तो हमारा एक्सपोर्ट का भी जो देखा आपने, तो काफी 4 गुना 5 गुना एक्सपोर्ट भी हमने बढ़ाया उसको। सरकार ने तो उसको दिया ही, लेकिन बट नो डाउट इस यहाँ के युवाओं में वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, एक अलग सुनील विश्वास जी, पैदा कर। आपकी बात सही है। मैं आप ही का एक लोकसभा में स्पीच देख रहा था, जब कि आपने बात किया कि लॉकडाउन में भी राष्ट्रीय मार्ग बनाने का काम चल रहा था, जी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम चल रहा था, और आप जी तो उसके स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। तो ये कैसे हुआ? मतलब सब कुछ तो बंद पड़ा था, लेकिन इसका आइडिया, इसका जोश, इसका तो शेयर लॉजिस्टिक्स ही इतना कॉम्प्लेक्स रहा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। कैसा था उस समय कि आप पूरा देश तो लॉकडाउन था, पूरी दुनिया लॉकडाउन था,
और ये तो क्या है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में, भारत में यहाँ तक कि पुअरिटी भी काफी है। और जो खासकर वो लेबर क्लास है, जो लेबर क्लास का आदमी है, वो 4 महीना 6 महीना अपने गांव में रहा, सिटी से वापस आया, काम करने के लिए जा रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के, वापस आ गया, सब लोग अपने घर में पड़े रहे। अब वो कब तक के वो खाली हाथ बिना जो रोज का जिनको कमाते और खाते हैं, ऐसे लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया, उबर हो गया। गवर्नमेंट ने खुद हेल्प की, कुछ अलग अलग तरीके से 500 रुपए दे के, कुछ और कुछ गैसेस के, कुछ गैस फ्री में दिए, तो शुरू में सब चलता रहा। कब गवर्नमेंट कब तक करेगी? और जब ये चीज ध्यान में आई, तो खासकर हमारे जो नितिन जी गडकरी है, जिनका मंत्रालय इस काम को देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है, तो वो नितिन जी की सोच थी। और नितिन जी भी इसको बहुत नजदीक से कोरोना को देख रहे थे। उन्होंने भी काफी काम किया, पर्सनल लेवल पे भी काफी काम किया। नागपुर से ही है, हमारे मेरे नजदीक से ही है, मैं कंटिन्यू उनके टच में था। कोरोना काल में हम लोगों ने भी काफी काम किया, मैंने भी खुद काफी काम किया। मैंने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा होगा मेरे दोनों डिस्ट्रिक्ट में, कोरोना हॉस्पिटल, जहां मैं गया नहीं होगा, लोगों से मिला नहीं होगा कोरोना काल में। तो वहां से हमें इस बार हुआ कि ये तो लोगों की हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, और इनके पास ना इलाज के लिए पैसे, ना खाने के लिए पैसे रहेंगे इनके पास, खासकर वो गरीब तबके के लोगों के पास, लेबर क्लास के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले हिम्मत दिखाई कि भैया ये तो है, क्योंकि हम लोग वैसे भी किसानों को तो काम मना करके रखा नहीं था कोरोना काल में, तो मजदूर लोगों को भी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है मजदूर लोगों की, वो एक कर सकते हैं। एक स्पेशल कुछ प्रिकॉशन लेके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का, खासकर और नेशनल हाईवे का काम, क्योंकि उसमें नेशनल हाईवे काम 6-6 महीना, एक साल लेट होना है, क्योंकि जब नेशनल हाईवे के काम चलते हैं तो पूरा नेशनल हाईवे डिस्टर्ब भी होता है, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है। तो इसको लंबा पीरियड तक एक अच्छा काल था कि पूरा ट्रैफिक कम हो गई थी, सब चीज अच्छा पीरियड था। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि ट्रैफिक पे करना भी मुश्किल होता है, ये सब अच्छा उनको उन्होंने। और जहां तक हमारे मोदी जी की और नितिन जी की सोच, कभी भी वो हमने देखा उन्होंने कि जब जब कोई बड़ा हम पे तूफान आता है या कुछ भी तकलीफ आती है, तो उनको इस तरह से वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस पूरे आफत को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया कि ये समय मेरा अच्छा है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशली काम करूं, मेरा पूरा रास्ता खाली है, ट्रैफिक नहीं है रास्तों पे, और जहां तक मजदूरों का काम है, मजदूर हिम्मत करने के तैयार है, और मैं खुद प्रिकॉशन के साथ में यदि काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए, पूरे कलेक्टर लोगों को, कि जो जो नेशनल हाईवे पे काम करना चाहता है, तो उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देके एक उन्होंने प्रोटोकॉल बनवाया कि कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा। प्रोटोकॉल के साथ में इन सबको परमिशन दी जाए, लेबरों को भी लेबर कैंप में रहने की पोजीशन दी जाए। जो लेबर है, लेबर कैंप है, वो गांव से अलग रहेगा, वहीं पे अलग होगा, वो अलग रहेंगे, और गांव अलग रहेगा, वो कोई गांव में नहीं रहेंगे। वो जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी प्रोटोकॉल होता है कोरोना का जिसमें था, उसके हिसाब से उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल लगा के काम करवाया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि काफी ताकत के साथ पूरे देश भर में, मेरे एरिया में तो थे ही थे, मेरे एरिया में कम से कम काफी काम हो रहे थे, नेशनल हाईवे के काम हो रहे हैं। तो तो पूरे देश भर में इस काल में खासकर नेशनल हाईवे काम काफी, इंफ्रास्ट्रक्चर काम काफी हुए, और अच्छे स्पीड से हुए। एक ये रिकॉर्ड तो दे सकते हैं आप उसको। जी बहुत ही सराहनीय काम हुआ था। जी जी, बिल्कुल। तो अब आपका अपना बिजनेस बैकग्राउंड है, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग चैलेंजेस होते हैं। अब ये तो नहीं है कि हर जी जगह कोई आईटी कंपनी ही बैठा दे। तो आपके जी कॉन्स्टिट्यूंसी के जब युवा आपके पास आते होंगे कि मुझे जी कुछ आइडिया दीजिए, कुछ मार्ग दिखाइए, आप किस तरह का जी, उनको रास्ता दिखाते हैं कि क्या कर सकते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? बिल्कुल जी। एक आपने भी देखा होगा कि जनरली वो युवा जो जिनके पास सच में काम नहीं होता, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हमने एक देखा है कि जैसे कुछ ये डिजिटल वर्ल्ड के कुछ फायदे हैं, वैसे कुछ हमारे लॉसेस भी हुए। इस न्यू वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हर कोई बहुत कम इजी जॉब चाहते हुए इजी मनी कमाना चाहता है। ये भी थोड़ा सा एक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है लोगों की, मेहनत कोई करना चाहता नहीं। मैं आपको बोल दूं कि मेरा फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग का। तो मैं जब काम करता था, तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग एज ए, हम 90% लोग फील्ड पे ही काम करते। हम लोग खाली 5-10% लोग ऐसे थे जो मैनेजमेंट स्किल पे काम करते थे, वो खाली ऑफिस में काम करते थे या एसी में काम करते थे। हमने तो हमेशा धूप में ही तपा है अपने आप को, या बारिश में, और विंटर में ऐसे ही घूमे हम लोग, और ऐसे ही काम करते थे। आज का जो युवा है, खासकर थोड़ा जितना कुछ अच्छा भी है, तो कुछ जो युवा है जिसको सच में काम नहीं मिलता है, जो भी काम के लिए चिल्लाते रहते हैं, उन्हें बड़ा एक मैंने देखा है, उनको बहुत कम इजीली जॉब चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा सैलरी चाहिए, और वो भी एसी में या अच्छे एक ऑफिस बैठ के चाहिए। वो मेहनत करके स्ट्रगल करना नहीं चाहते, ऐसे कोई जॉब नहीं चाहते। तो मैं हमेशा उन लोगों को बोलता हूँ कि आज भी
जो भी आप देखे होंगे, तो जॉब तो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन आप जानते हैं, इसकी फैक्ट सब आपको जानते हैं, आप तो काफी एक्सपीरियंस होल्डर इस फील्ड में रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेस भी आपका है, तो कि अभी कैसा है कि 130 करोड़ के लोगों को, देश को, यदि सबको जॉब देना है तो एक आसान काम नहीं है, तो एक बड़ा अलग विषय है। और गवर्नमेंट काम नहीं है कि खाली आप सबको जॉब पे लगाओ, तो गवर्नमेंट तो एक काम करेगी, डेवलपमेंट का काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, तो उसके माध्यम से लोगों को जॉब। तो मैं लोगों को एक हमेशा बोलता हूँ कि आप सबसे पहले तो देखिए कि जो नया यूथ आता है, जो ग्रेजुएट होकर आता है, उनको मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको जो काम हाथ में है वो काम लेना चाहिए, छोटा बड़ा जैसा भी हो, किस लेवल का है, किस पोजीशन का, बाद में बोलता हूँ। पहले आप अपने पैर पे खड़ा हो जाए, जो अपने को सर्वाइव होने के लिए जो लगता है, वो सैलरी मत सोचो, कुछ मत सोचो, आप एक्सपीरियंस करके कुछ काम करो, जो आपको मिलता है, इजीली मिलता है, आपके गांव में मिलता है गांव में कीजिए, आपको छोटे से, हमारे भंडार जैसे छोटे सिटी में मिलता है तो उसमें कीजिए, बड़े सिटी में कीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि उसमें स्पेशलाइजेशन काम के लिए ही आप ढूंढते रहो, तो उसमें समय गवाओ आपको। तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि उन लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे अच्छा दुनिया में मुझे क्या लगता है कि सबसे मैंने अच्छा क्या किया मेरी जिंदगी में, तो मैं जब 18 साल का था, रिजल्ट लगने के पहले मैं जॉब करने आया। मैं सोचा नहीं क्या मुझे हो रहा होने वाला, मेरा कुछ मुझे मालूम नहीं था, बस मुझे मालूम था कि बाप मेरे पिताजी मुझे और पढ़ा नहीं सकते, और मुझे वो ताकत नहीं है, पिताजी में फाइनेंशियली वो ताकत नहीं है कि मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सकूं। तो 18 साल का जब मैं एक कॉलेज पूरा करके आया, तो मेरा रिजल्ट लगने से पहले मैं जॉब पे लगा। मैंने उनको ये पूछा नहीं कि सैलरी क्या मिलने वाली है, तो मुझे, आप इमेजिन नहीं करोगे, 400 रुपए में मुझे सैलरी थी पहले जब मैं काम स्टार्ट किया 1987 में, और मुझे जॉब दिया साइट इंजीनियर। तो साइकिल से घूम के हम लोग काम कर रहे थे, और 3 साल तक काम किया। जब जॉब छोड़ा तो 650 रुपए मिलता। तो कहने का मतलब कैसा है कि वो जो एटीट्यूड से काम करते हैं कि मुझे काम करना, दैट्स ऑल। मैंने वो नहीं देखा कि मुझे पैसे पगार कितने मिला, क्या मिलेगा, मुझे मेहनत करनी, उस समय मेरा क्या था, उम्र क्या थी कि मुझे वो सब सोचा था, लंबे कोई सपने देखने नहीं थे। मुझे तो खुद का सर्वाइव होना था, खुद के पैर पे खड़ा होना था। घर में मुझे कुछ फाइनेंशियली हेल्प हो नहीं सकती उससे ज्यादा जो जो था। तो उस हिसाब से जो खुद को ढालने से आता है कि सब कुछ अपना न्यौछावर करके जब काम करते हैं, तो मैंने देखा कि इजीली सक्सेस मिल जाता है। वो बहुत ज्यादा उसके लिए ऐसा भी नहीं कि पापड़ बेलने पड़ते या बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कुछ करना पड़ता है। मैंने तो पूरी जिंदगी सीधी बिताई है, कभी तिरछा चलने की जरूरत नहीं, सब चीजें मुझे, और जरूरत पड़ी मुझे। तो इस तरह से एक होता है। तो आज का युवा का प्रॉब्लम यह है कि उसको बहुत इजी जॉब चाहिए, और अच्छे जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, और जो अब वो तो उनको मिलता है जो डिजर्व करते हैं, अच्छे कॉलेज में, कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, अच्छे कॉलेज से डिग्री लेते हैं। और हमारे यहाँ जॉब की कोई कमी नहीं, ऐसा बोलेंगे सब नहीं होगा कि बहुत ज्यादा काम है। मेरे क्षेत्र में भी देखेंगे आप, वैसे तो मेरा तालाबों का जिला है, मेरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये देखोगे कि छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी, जिसमें 4000 के आसपास तालाब है, वाटर बॉडी 4000 के आसपास, 2 नदी है, अच्छी बड़ी बड़ी नदी, और अराउंड 44% फॉरेस्ट एरिया जोग्राफिकली। तो वैसे तो यहाँ इंडस्ट्री कोई है नहीं, एक छोटा इंडस्ट्री है सरदार करके, अशोक लैंड में छोटी इंडस्ट्री है, और एक हमारे यहाँ अदानी का एक पावर प्लांट है, तो इंडस्ट्री है, तो लिमिटेड जॉब वहां मिलते हैं। लेकिन मैं हमेशा लोगों को कभी भी हमेशा बोलता हूँ कि आप इंडस्ट्री को छोड़ दो। मैं तो उन्हीं को डेवलप करता हूँ, बच्चों को जो मेरे साथ में आते हैं, कि आप छोटा मोटा बिजनेस अपने गाँव में करो, छोटे मोटे बिजनेस करो, आप अकेले बिजनेस करने के बजाय 10 लोगों को और काम दो। जो हमारी मोदी जी की आइडियोलॉजी, या हमारी सेंट्रल में जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसी ऑडियो बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है कि आप ये बड़े बड़े कोई इंडस्ट्री लाने के बजाय, यदि छोटे, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जॉब बहुत ज्यादा, अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होती, कि वो लोग पूरा ऑटोमेशन में काम करते हैं, तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, कमर्शियली डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसके उल्टा जो होता है कि छोटा छोटा बिजनेस जो होते हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटी इंडस्ट्री, वहाँ सब मैनुअली होता है मैक्सिमम, हर काम सही वहाँ पे बात है, मैनुअली होने की वजह से, तो वहाँ आपकी एक बात अच्छा। एकदम सही है। सुनील जी, जी आपसे तो बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला, हमारा वक्त खत्म हो गया। लेकिन एक आखिरी जी सवाल तो पूछ के ही तभी आपको छोड़ूंगा। जी एक पॉलिटिशियन की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, मैंने तो करीब से देखा है। आपका जी वक्त आपका बिल्कुल। वक्त नहीं होता, जी आप कोई टाइमिंग नहीं होता, और जो जी मानसिक शक्ति चाहिए वो तो बिजनेस में भी लोग कुछ भी नहीं देखते, उसका तो 1% स्मॉल परसेंटेज भी नहीं देखते। तो जी ऐसी जिंदगी जीते हुए आप अपना मानसिक संतुलन और अपनी मानसिक शक्ति और अपना हेल्थ वेलनेस और कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी वही चीज है, बहुत छोटे स्केल बिल्कुल। पे, तो ये उनको गाइड करेगा, आप कैसे मेंटेन करते हैं? जी बहुत सिंपल है। मैंने बोला कि मुझे, मेरी आदत है
जो भी काम करो खुशी से करो, एक इंटरेस्ट लेके करो। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मुझे भी लगा कि बहुत मुश्किल जिंदगी है, और मुझे भी लगा कि बहुत चैलेंजेस भी बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है इस फील्ड में। लेकिन मैंने बताया कि जैसे कि मुझे पसंद है कि जो चीज करना है उसको दिल से करो, अच्छे अच्छे दिल से करो। और उसमें यदि आप बोलोगे कि मुझे ये थोपा गया है, या मुझे मुझे तो मूड नहीं था, या मुझे करना नहीं था, या मैं ऐसी जिंदगी क्यों जीऊं, लोगों के लिए क्यों जीऊं, तो सिंपल विषय है कि वो चॉइस तो मेरी थी। मैंने अपने आप को चॉइस किया कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, कोई तो जबरदस्ती तो कोई लेके नहीं आता मुझे। और जब लोगों ने मुझे 20 लाख लोगों को सोचना है, न कि मेरा खुद का सोचना। मैं 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैंने उनका सोचना है। और यदि ये सोचते हो आप लोग, और फिर आप चाहते हो कि मुझे तकलीफें क्या होने वाली, तो आपको साथ में ये सब बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं लगता अपने आप को, आप बहुत इजीली उनको ढा सकते हैं। वैसे भी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, वर्कोलिस्ट रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस करता तब भी बहुत छोटे पैमाने से, बताया आपको कि छोटे पैमाने से लेकर मैं आज मेरी कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही। मेरा बेटा या मेरे बाकी लोग चला रहे हैं, तो आज उसका अराउंड 100 करोड़ तक उसका एक टर्नओवर भी हो चुका है। तो छोटे से तबके में काम कर रहा था, मैं उस यहाँ तक लेवल तक पहुंचा हूँ। तो वहां भी मैंने स्ट्रगल किया था। तो मुझे यहाँ भी लगता है कि जो मुझे जो अच्छे पॉलिटी देश की सेवा करने का अच्छा मौका मिला है, और मोदी जी जैसे विजनरी मुझे गाइडिंग का मिलता है, नितिन जी जैसे लोग हैं जिनकी थ्योरी और जिनका आइडियोलॉजी भी एक अलग है, तो उनके साथ काम करने मजा आता है। इन लोगों के साथ ऐसे आइडियोलॉजी के साथ में काम करने, तो मैं अपने आप को इजीली उसमें एक मुझे लगता नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ उसमें दुख होता है या तकलीफ होती है, कभी ध्यान में भी नहीं आता, नहीं कभी आता है। और हार्ड वर्क तो वैसे ही बताया आपको कि बचपन से ही मेरा हार्ड वर्क रहा है, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। मुझे तो लगता है कि अभी भी मैं बोलूंगा कि अच्छे लोगों ने, अच्छे इंसान ने इस फील्ड में जरूर आना चाहिए, और बहुत कुछ करने लायक, कुछ दिशा देने लायक, और एक कुछ एक देश के लिए कुछ करने लायक जो सोचते हैं। जब पहली बार मैं सदन में गया था, सभागृह में जब गया, तो जब देखा कि पूरी हमारे देश के सब कोने से पूरा दुनिया भारत कैसे दिखता है, तो वहां दिखी आप एक एक कोने से, अलग अलग रंग कलर से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग संस्थाओं से अपने आप टैलेंटेड लोग, अपने आप अलग अलग तरीके से सब, तो वहां एक साथ होते तो लगता है कि देश हमारा कितना विविधता से और एक साथ जब बैठते हैं, तो उसमें अलग ही अपने आप को एक अच्छा महसूस करते हैं आप लोग कि ये है हमारा देश, तो इसके लिए कुछ तो हमें करना चाहिए। सुनील मेंदे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें सुनकर एकदम पता चल जाता है कि आप क्यों 2 लाख वोट से जीते। हालांकि आप नए थे पॉलिटिक्स में, हालांकि आप फर्स्ट टाइम एमपी हैं, आपके विचार, आपकी सोच इतनी सटीक है कि युवाओं को इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। धन्यवाद सुनील मेंदे जी, अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत थैंक यू वेरी मच।